Assalamualaikum viewers, I hope you are fine. It is me, Mr. Saeed Wazir, mentor of CSS English Essay and Pressy. Viewers, currently I am teaching at Civil Officers Academy. Today's topic is all about syntax. अगर थोड़ा सा स्टूडेंट्स बैकग्राउंड में चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर लूँ तो there are two fundamental concepts. One is your syntax, that is related to grammatical technicalities, and another is your semantics, that is related to your knowledge, your materials, your concepts and your ideas. But specifically today I will talk about head and head. Both the structures, they are related to grammar and they are important for academic and competitive writing. If you focus the whiteboard, then I will explain. We were to begin with head and head. These are two grammatical structures, but before we talk about their significance, their explanation and their application, let's talk about its forms. To begin with, students, forms of have and has. First तो हम students ये understand करें कि has is used with singular nouns and pronouns and have is used with plural nouns and pronouns. But again, if we talk about its three important and salient forms, one, has or have, this is the first form, present tense. Second, had, this is the past participle. And third, had, this is the past perfect participle. Students, main verbs, they have three forms. One is present, another is past, and another is past perfect participle. Now students, have, we will talk about have. Have is used both as a main verb and as an auxiliary verb. If you focus the whiteboard, have as a main verb, to begin with, possess, own, hold, comprise, experience, cause, undergo, feeling, organize, arrange, eat, drink, receive, produce, beget, do, be, ill. Students, if we use have as a main verb, then we will be using have in terms of these vocabulary items. These verbs I have listed. Again, these verbs we will be using in three different forms: first form, second form, and third form. Now, students, have as an auxiliary verb. Have as an auxiliary verb. ये हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में. जब हम auxiliary के तौर पे have या has को इस्तेमाल करेंगे तो ये मेजर दो टेंसेस में, बाकी हम फ्यूचर में भी इस्तेमाल करेंगे और पार्टिसिपल्स या इन्फिनेटिव्स में. बट टुडे लेक्चर इज ऑल अबाउट योर have had and had. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये फॉर्मूलास पे आप लोग फोकस करें. अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे बात करें, फॉर्मूला आप देख ले, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अगर आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ आ जाए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो स्टूडेंट्स, ये दो फॉर्मूलाज आप लोग याद करें और आप ये डिफरेंशिएट करें कि हैव को एज अ मेन वर्ब भी हम इस्तेमाल करेंगे, पोजेस के सेंस में, ओन के सेंस में, होल्ड के सेंस में, कंप्राइज के सेंस में, रिसीव के सेंस में, प्रोड्यूस, बिगेट, डू, बी, इल, ये जितने भी मतलब सर्कल के अंदर मैंने एनलिस्ट किए, इनके सेंस में हम हैव को इस्तेमाल करेंगे एज अ मेन वर्ब. फिर हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब जब हम इस्तेमाल करेंगे तो मेजर हम दो टेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में. स्टूडेंट्स, अभी एग्जांपल्स की तरफ आप लोग आ जाएं. शी हैज हैड 2 चिल्ड्रन. शी हैज हैड 2 चिल्ड्रन. मैंने यहाँ पे शुरू में बताया था कि हैज हम सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करेंगे और हैव
प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख ले, शी हैज हैड 2 चिल्ड्रन। हैज एंड हैड दे कम टुगेदर। वाई? यहाँ पे हमने पढ़ा प्रोड्यूस आर बिगेट। प्रोड्यूस आर बिगेट। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि शी हैज बिगॉटन या शी हैज प्रोड्यूस्ड 3 or 2 children. Okay students, example number 2. We have had problems. We have had problems. यहाँ पे have जो है आपका ये auxiliary और had जो है ये आपका main verb है। मेन वर्ब हेड आपका मेन वर्ब है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देख लें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे ये आपका हैव ऑक्सिलरी वर्ब है जो मैंने फॉर्मूला में आपको लिखवाया था। और हेड हैव को हमने एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किया, किस सेंस में? एक्सपीरियंस्ड या अंडरगो, अंडरवेंट, अंडरगॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई हैव हैड अ सीवियर हेडेक। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैव इज योर एक्सिलरी वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि हम एक्सिलरीज इस्तेमाल करेंगे हैज या हैव, और फिर थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे थर्ड फॉर्म आप देख ले, हैड अ सीवियर हेडेक। यहाँ पे हम फीलिंग के सेंस में फेल्ट या एक्सपीरियंस्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन हम पास्ट परफेक्ट की तरफ आएंगे। ही हैड मीटिंग विद पीएम। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ही हैड ये आपका एक्सिलरी है, और यहाँ पे हमने जो हेड इस्तेमाल किया थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल किया अरेंज्ड या ऑर्गेनाइज्ड या डन, इसके सेंस में हमने इस्तेमाल किया। शी हैड अ बैड ड्रीम, मतलब शी सेड that last night she had a bad dream, means she had experienced या she had seen। तो स्टूडेंट्स, वो तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हैव को आप मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे और आप एक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे। we had some problems, इसका मतलब ये है कि we had faced या experienced some problems। तो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिकेपिंग द होल डिस्कशन। आप लोग हैज और हैव को अंडरस्टैंड करें। साइमल्टेनियसली वी आर यूजिंग देम एज मैन वर्ब्स एंड वी आर यूजिंग देम एज एक्सिलरी वर्ब्स। जब आप मैन वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे हैज को या हैव को, तो स्टूडेंट्स ये देख लें, possess, own, hold, comprise, experience, cause, undergo, feeling, organize, arrange, eat, drink, receive, produce, beget, do, be ill। अगर आप एक्सिलरी के सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे और पास्ट परफेक्ट में। या फिर स्टूडेंट्स आप इन चीजों को फोकस करें। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला देख ले, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का देख ले, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख ले, शी हैज, ये आपका ये वाला हैज है जब हम एक्सिलरी के, लेकिन यहाँ पे हम मेन वर्ब भी हैव वाला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हैव एज अ मेन वर्ब भी हम इस्तेमाल करते। शी हैज हैड 2 चिल्ड्रन मीन्स प्रोड्यूस्ड या बिगॉटन, प्रोड्यूस्ड या बिगॉटन। वी हैव हैड प्रॉब्लम्स मीन्स वी हैव आपका ये हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला हैव, और हैड प्रॉब्लम्स मीन्स experienced problems। Same is the case, I have had a severe headache। यहाँ पे I have ये auxiliary had, felt या experienced, felt या experienced। Again यहाँ पे अगर perfect में हम देख ले, हम had इस्तेमाल करेंगे और third form of the verb। She had meeting with PM। यहाँ पे she had आपका auxiliary है और ये had आपने have को main verb के तौर पे इस्तेमाल किया, तो हैव का जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आपका हैड है इस सेंस में, ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज्ड या डन। शी हैड अ बैड ड्रीम मीन्स शी हैड एक्सपीरियंस्ड, इस सेंस में शी हैड एक्सपीरियंस्ड। वी हैड सम प्रॉब्लम्स, वी हैड ये आपका एक्सिलरी हैड और ये हैड हैव को आपने मेन वर्ब इस्तेमाल किया, तो मेन वर्ब आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे किस सेंस में,
एक्सपीरियंस के सेंस में या मतलब बाकी जो है यहाँ पे जो भी अरेंज के सेंस में या ओन के सेंस में या फेस के सेंस में. तो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट योर हैव and had. So students hopefully have had and had. तो स्टूडेंट्स होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. प्लीज आप लोग कमेंट करें, आप लोग मुझे फीडबैक दे दे और जो भी टेक्निकलिटीज आपको आएंगे नीचे कमेंट में आप लोग कमेंट करें. आई विल एक्सप्लेन. सी यू अगेन. अल्लाह हाफिज. ऑल द बेस्ट.